السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ اس بدماش کے مشورے کے پیش نظر پرنسپل کے کمرے میں موجود اسٹوڈنٹس، پولیس اور بعد میں آئے ہوئے کلیام سنگھ کے ساتھیوں کی 10 ٹیمیں بنائی گئیں۔ ہر ٹیم میں 10 افراد شامل تھے۔ کٹھل سنگھ نے اپنے ساتھ مجھے رکھا۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں بمبئی کی حدود 70 بائی 70 میل کے درمیان تھی اور وہاں کچھ شہری علاقہ اور کچھ جنگلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ مجموعی طور پر ان جنگلات کا رقبہ 25 میل پر محیط تھا۔ ان جنگلات میں جلتن سنگھ کو تلاش کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ باہمی مشورے سے یہ طے ہوا کہ 60 ٹیمیں جنگلات میں اور 3 شہری علاقے میں کام کریں گی۔ پہلے روز رات کے وقت تمام 10 کی 10 ٹیمیں ناکام واپس آ گئیں۔ جلتن سنگھ نہ ملا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے روز مزید ٹیموں کو تشکیل دے کر بمبئی شہر کی حدود کے باہر جلتن کو تلاش کیا جائے گا۔ اسی دوران کٹھل سنگھ نے آرمی ڈاگ سینٹر کے اسپیشل سونگھنے والے کتے منگوا لیے تھے۔ ان کتوں کو جلتن سنگھ کی چپلیں اور کپڑوں کو سنگھوایا گیا۔ ان کتوں کے ساتھ ملٹری کا ایک صوبے دار میجر بھی آیا تھا۔ دوسرے روز ہماری ایک ٹیم، جس کا نمبر 9 تھا، وہ بمبئی شہر کے مخصوص حدود سے 6 میل دور ڈونڈا کے جنگلات میں گئی۔ کتوں کے نگراں صوبے دار میجر نے سونگھنے والے اسپیشل کتوں کی رسیوں کو کھول دیا۔ وہ بڑی تیزی سے جنگلات کے اندر گھس گئے۔ دراصل ڈونڈا کے جنگلات اس زمانے میں 6 میل کے احاطے پر خودرو دیوہیکل جھاڑیوں، کیکر کے طویل درختوں پر پھیلا ہوا تھا۔ سونگھنے والے کتوں کو ڈونڈا کے جنگل کے اندر گھسے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ صوبیدار میجر نے ساری ٹیم کو تنبیہ کی تھی کہ وہ اس جنگل میں پیدل آگے نہ بڑھیں۔ اس نے بڑے وثوق سے کہا تھا کہ میرے کتے بے شک رات کو جنگل سے لوٹیں گے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ مثبت پیش رفت لے کر باہر آئیں گے۔ ادھر کٹھل سنگھ نے غصے کے عالم میں اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، دفع کر اپنے کتوں کو، ہمیں جنگل کے اندر آگے بڑھنے دے۔ صوبیدار نے جھٹکا دے کر کٹھل سنگھ کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا کہ سردار جی ہوش کریں، آگے جنگل نہیں بلکہ موت کی وادی ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس ٹیم کے کسی رکن کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ جنگل کے اندر مزید پیش قدمی کریں۔ تو صرف بکواس کر رہا ہے میرے ساتھ۔ چلو اوے منجو، اپنے بندوں کو لے کر جنگل کے اندر چلو۔ یہ آپ اپنے بندوں کو موت کے منہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ بھگوان کے واسطے آپ کچھ وقت یہاں انتظار کر لیں۔ میرے کتے کچھ نہ کچھ مثبت پیش رفت کے ساتھ آ رہے ہوں گے۔ وہاں موجود منکا سنگھ کے بدماشوں نے اس کی کوئی نہ سنی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، سوٹے اور تلواریں پکڑے جنگل کی حدود کے اندر گھس گئے۔ میں اب بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، کھٹل صاحب رک جائیں۔ ان لوگوں نے اس کی کوئی نہ سنی۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کٹھل سنگھ نے زبردستی مجھے اور سنکرام اور تھانے دار سوتم لال کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ وہاں اندر جنگل میں حالیہ برسات کی وجہ سے شدید کیچڑ دلدل پھیلا ہوا تھا۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سردار جی کدھر سے آگے بڑھیں؟ یہاں تو ہر طرف دلدل ہی دلدل پھیلی ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہاں سے تم نے آگے بڑھنا ہے، بس ایسے آگے بڑھتے رہو۔ سردار جی جیسا آپ کا حکم۔ ہم لوگ بڑی احتیاط سے آگے چل رہے تھے کہ ہمارے پیچھے سے ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ ہائے میں مر گیا، پیچھے مڑ کر مت دیکھو، دیکھو گے تو مرو گے۔ اوہو سوتم لال دلدل میں دھس رہے ہیں۔ کٹھل صاحب بھگوان کے لیے مجھے بچا لو، میرا جسم نیچے کو دھنستا جا رہا ہے، سوتم لال نے چیخ کر کہا۔
दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं खुशकिस्मती से इस वक्त खुश जगह पर मौजूद था। मैं भागकर इसके करीब गया और दलदल ज़मीन में धंसते हुए थानेदार सौतमलाल को कहा कि आप मुझे अपनी पैंट की पट्टी खोलकर इसका एक सिरा मेरी जानिब फेंक दें। सौतमलाल ने सेकंडों में अपनी पैंट की पट्टी खोलकर इसका एक सिरा मेरी जानिब फेंका। इसका वज़न मुझसे कहीं ज़्यादा भारी था। मैंने अपने तिए खूब जोर लगाया, लेकिन मैं इसे अपनी जानिब खींच नहीं पा रहा था। मैंने इसको दलदल से बाहर निकालने के लिए मदद के लिए सबको पुकारा। फ़हीम गुल, तू इसे छोड़ और हमारे साथ आ, इसे कुछ न होगा। कट्टल सिंह बड़े गुस्सैले अंदाज में चला आया। मैंने 4-5 दफ़ा इसे दलदल के चुंगल से बाहर निकालने के लिए पुकारा तो मनका ग्रुप के एक गुंडे को थोड़ा सा तरस आ गया। इसने एक बड़ी सोटी तोड़कर इसकी जानिब उछाल कर कहा कि एक हाथ से तू इस छड़ी को पकड़, मैं इसे खींचता हूँ। हम दोनों की सरतोड़ कोशिश से थानेदार सौतमलाल को दलदल से बाहर निकाल लिया गया। वो वापस जाने लगा तो कट्टल सिंह ने इसको धाड़ते हुए कहा, कहाँ दफ़ा हो रहा है? सरदार साहब, मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। सूबेदार सही कहता था कि आगे जंगल नहीं बल्कि मौत की वादी है। तूने अगर इस मुसीबत में हमें इस अंधे जंगल में अकेला छोड़ा तो यकीन कर मैं तुझे गोली पड़वा दूंगा। मरवा दे मुझे, इसकी कोई परवाह नहीं। थानेदार ने इंतहाई गुस्से के आलम में ये जुमला कहा तो कट्टल सिंह ने अपने नेफे में उड़सा हुआ पिस्तौल निकाला और एक फायर इसकी जानिब दाग दिया। बेचारा थानेदार टांग पर गोली लगने के बाद ज़मीन पर गिर गया। चलो, इसे कोई ना उठाए, इसे यहीं मरने दो। कट्टल सिंह के इस इकदाम से टीम के सारे अराकीन सहम गए। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि हमारी निगाहों के सामने सूंघने वाले कुत्ते बड़ी बर्क रफ्तारी से हमारे सामने से गुजर गए। इन कुत्तों में से एक के मुंह में एक बड़ा सा कौवा दबा हुआ था, जबकि दूसरे कुत्ते के मुंह में एक नीला सा कपड़ा था। वो तेजी से जंगल के हुदूद से बाहर चले गए। कट्टल सिंह ने कुत्तों की इस हालत में वापसी देखी तो इसने अपना वतीरा बदलते हुए सारी टीम को कहा कि वापस चलो। सरदार जी, हम बहुत आगे आ गए हैं। तुम में से आधे बंदे जंगल में आगे बढ़ें और आधे मेरे साथ वापस सूबेदार के पास चलें। दिली तौर पर सारी टीम वापस जंगल की जानिब जाना चाहती थी। कट्टल सिंह ने अपनी उंगलियों की मदद से चंद अफराद को चुनकर आगे बढ़ने का कहा था। शुक्र है इसने मुझे वापसी का इशारा किया था। हम जब दोबारा वापस सूबेदार मेजर के पास गए तो इसने तंजिया तौर पर कुछ जुमले कट्टल सिंह को भी सुना दिए। अच्छा ये बता, तेरे कुत्ते क्या कहते हैं? कट्टल ने कहा, सरदार जी आप खुद देख लें, एक कुत्ते ने अपने मुंह में मुर्दार कौवे को पकड़ा हुआ है और दूसरे कुत्ते ने ये नीले रंग का कपड़ा पकड़ा हुआ है जो देखने में किसी शलवार का है। शलवार में खून लगा हुआ है। मैंने इसे नीले फटे कपड़े के टुकड़े पहचानते हुए कहा, ओहो, इस रंग की शलवार तो जलतन सिंह ने सुबह पहनी हुई थी। सूबेदार ने अपना मशवरा देते हुए कहा, इसका मतलब है कि सरदार जी, जलतन सिंह इसी जंगल की हुदूद में कहीं है, लेकिन किस पोजीशन में है इसका कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? कट्टल ने पूछा। सरदार जी, मेरे 2 कुत्ते अभी इस जंगल के अंदर ही हैं। मुझे थोड़ी देर इनका इंतज़ार करना है और मुझे उम्मीद है वो दोनों कुत्ते इन दोनों कुत्तों के पीछे आ रहे होंगे। अभी और हमें यही इंतज़ार करना पड़ेगा। कट्टल सिंह ने पुरजोर अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। सूबेदार मेजर इसके करीब आया। इसने कट्टल सिंह को कहा, सरदार जी, मुझे आपकी परेशानी का एहसास है, लेकिन हमें आपके पुत्र
जलतन सिंह को बड़ी प्लानिंग से तलाश करना होगा। जहां आपने इतना सब्र किया है, मुझे सिर्फ 10 मिनट और दे दें। तकरीबन 7 मिनट बाद एक इंतहाई शदीद जख्मी कुत्ता लड़खड़ाता हुआ जंगल के अंदर से नमूदार हुआ। इसके जिस्म पर कौवों के ठोंगों के सैकड़ों के निशान नुमाया थे। ओहो सरदार जी, अब मैं सही नतीजे पर पहुंचा हूं। अब मैं समझ गया हूं कि आपका पुत्र किस लोकेशन पर होगा, लेकिन मैं आपको अब भी यहाँ ये बात साफ तौर पर बतला दूं कि आपका पुत्र इस जंगल की जिस लोकेशन में होगा वो लामहला शदीद कर्ब में दरिंदों के नरगे में है। अच्छा, अपनी बकवास बंद कर और ये बता कि अब हमें क्या करना चाहिए। खट्टल सिंह ने इंतहाई परेशानी में अपना सर पीटते हुए कहा। सूबेदार मेजर ने कहा, सरदार जी, कम से कम 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम सामने नील रास्ते से और 10 अफराद पर मुश्तमिल टीम साइड से जंगल के अंदर भेजनी चाहिए और इसी तरह एक बैक पार्टी नोराल के इलाके से जंगल के अंदर जाए। ये तू क्या कर रहा है? सरदार जी, भगवान के वास्ते मुझे इस मामले को अपने तौर पर डील करने दें। अगर आपने इस गुत्थी को सुलझाना नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूँ। एक बदमाश ने दरमियान में मुदाखलत करते हुए कहा, नहीं नहीं सूबेदार साहब, ये मामला आप अपने तौर पर डील करें। आप जल्दी से 3 टीमें तश्कील दें और फटाफट जंगल की जानिब पेशकदमी करें। इस बार भी खट्टल सिंह ने मुझे अपनी टीम में रखा, जिसने नबल के रास्ते जंगल के अंदर जाना था। नबल की साइड से जंगल का रास्ता कुछ कम दलदली और बेहतर था, लेकिन वहाँ भी जगह जगह खड्डों वगैरह में पानी खड़ा हुआ था। हमारी टीम के बंदे अपने हाथों में पकड़े डंडों कुल्हाड़ियों की मदद से रास्ते में आए सरकंडों, शाखों, छोटे दरख्तों को काट कर रास्ता साफ कर रहे थे। तकरीबन 1.5-2 घंटे तक हमारी टीम बड़ी एहतियात से जंगल में आगे बढ़ती रही। हमें कुछ कामयाबी ना मिली। एक जगह आकर हम लोगों ने ये बात मुशाहिदा की कि आसमान पर लातादाद कौवे बिल्कुल लेकर की सूरत में जंगल की सीध में आगे बढ़ रहे थे। सूबेदार मेजर ने पूरी टीम को कहा कि वो इन कौवों की जाती लकीर को फॉलो करते हुए चलें। मज़ीद तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद एक मकाम पर आकर हमारी टीम ये मंज़र देखकर ठहर गई। मंज़र यह था कि जलतन सिंह एक खाली जगह पर उकड़ू बैठा हुआ था और इसके आगे पीछे इर्द गिर्द सैकड़ों कौवे मंडला रहे थे और इससे ज़रा दूर आर्मी का सूंघने वाला कुत्ता कौवों को भगाने के लिए मुसलसल भौंक रहा है। खट्टल सिंह ने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ चिल्लाते हुए कहा, इन कौवों पर फायर करो, ऐसा ना करना। सूबेदार मेजर ने आखिरी हद तक ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, ऐसा ना करना, 1 सेकंड मेरी बात सुन लो। सूबेदार ने कहा कि हमें इन कौवों के करीब होकर फायर करना चाहिए, हरगिज़ सीधा फायर ना करना। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि ये कौवे इस बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। सूबेदार की हिदायत पर अमल किया गया। कौवों ने शायद हमें देख लिया था। इन्होंने हमारे सरों कानों पर ठोंके मारना शुरू कर दी थी। हाँ, अब इन पर छर्रे वाली कारतूसों से खुला हुआ फायर करो और इसके साथ बर्क रफ्तार से जलतन सिंह की जानिब बढ़ो। इस अमल से ये फ़ायदा हुआ कि जो कौवे हम पर हमला कर रहे थे, इनकी बड़ी तादाद भाग गई थी। चंद ढीठ कौवे जुनूनी अंदाज में मौका मिलने पर हम पर हमला कर रहे थे, लेकिन इनकी तादाद महदूद थी। हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फौजी अंदाज में पेश कदमी करते हुए जब जलतन सिंह के करीब पहुँचे तो वो निढाल करीबुल मर्ग पड़ा हुआ था। इसे फौरी तौर पर पानी पिलाया गया। जो कुत्ता कौवों से उलझकर इन्हें जलतन सिंह के करीब से भगाने की कोशिश कर रहा था, वो सूबेदार मेजर के करीब हाँफते हालत में इससे लिपट गया। हवाई फायर करो, सूबेदार मेजर मुसलसल चिल्लाता रहा। अब आसमान कौवों से साफ हो गया था। चलो, जलतन सिंह को कंधे पर उठाकर जल्द से जल्द जंगल की हदूद से बाहर निकलो। नीम मर्ग जलतन सिंह को एक गुंडे ने अपने कंधे पर उठा लिया था। जलतन सिंह ने बड़ी मरी आवाज़ में कहा, वो सामने दरख्त पर बैठे कौवे को मार दो। ये वो कौवा जिन है, वो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा।
रुको, कट्टल सिंह ने सारी टीम को रोकते हुए कहा। जरा जलतन सिंह की बात को गौर से सुनो। जलतन सिंह के लबों के करीब जब कान किए गए तो इसने बड़ी आहिस्तगी से कहा, वो सामने सफ़ेदे के दरख्त पर जो बड़ा काला सिया कौवा बैठा है, इसे किसी तरह मार दो। यही मेरी मुसीबत का असल कारण है। हम सब ने वहाँ नज़रें घुमाकर देखा। वहाँ वाकई एक सफ़ेदे के दरख्त पर एक बड़ा हट्टा कट्टा कौवा खामोशी से बैठा हुआ था। है कोई सही निशानेबाज जो इस शैतानी कौवे को निशाना बनाए? हाँ सरदार जी, मैं हूँ। मनका ग्रुप का एक बदमाश बड़े दावे से आगे बढ़ा। देख, अगर तूने मेरे पुत्र के इस दुश्मन को मार दिया तो मैं तुझे 2 मुरब्बा ज़मीन दूंगा, और हाँ, अगर तूने चूक की तो याद रख, मैं तुझे यहीं गोली मार दूंगा। सरदार जी, भगवान ने चाहा तो मैं अपने दावे पर खरा रहूंगा। इस बदमाश को T-13 कारतूस वाली नई गन थमाई गई थी, जिस पर बड़ी कीमती दूरबीन लगी हुई थी। बदमाश ने चंद लम्हे कौवे को निशाने पे लिया। इसकी एक आंख बंद थी और उंगली ट्रिगर पर थी। माहौल पर सकता छाया हुआ था। बदमाश ने अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए दरख्त पर बैठे कौवे को एक ही फायर करके ज़मीन पर गिरा दिया। इसके बाद इसने अपनी तसल्ली के लिए दूसरा फायर भी मारा, जिससे कौवे का जिस्म उधड़ कर रह गया। रावी ने इस कहानी का मुख्तसरन अंजाम ये बताया कि जलतन सिंह को इसके बाप ने बम्बई शहर के सबसे महंगे प्राइवेट हस्पताल में दाखिल करवाया। वहाँ इसका इलाज 2 माह चलता रहा। नेस कट्टल सिंह ने ज़ख्मी थानेदार को इस ज़माने में 10,000 और सूबेदार मेजर को 5,000 रुपये इनाम दिए, और मुझे 2,000 के अलावा मेरा तमाम मेडिकल तालीम का ख़र्चा बर्दाश्त किया। जलतन सिंह ने अपनी सेहतियाबी के फ़ौरन बाद अपनी मेडिकल की तालीम को जारी रखा। बकौल रावी, मैं तो डॉक्टर बनकर 1947 में पाकिस्तान आ गया, जबकि जलतन सिंह के बारे में ये पता चला कि वो आंखों का सर्जन डॉक्टर बना था।